गुजरात फंसा हुआ है, गुजरात को रास्ता नहीं दिख रहा है। गुजरात रास्ता देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं और मैं स्टेट से कह रहा हूं कि गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसको रास्ता नहीं दिखा पा रही है। जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। बब्बर शेर हैं मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। 15, 20, 30 साल जो गुजरात की एक्सपेक्टेशन हमारे से थी वो हम पूरी नहीं कर पा रहे। पहले ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं बोलेंगे तो हमारा गुजरात की जनता से कभी रिश्ता नहीं बनेगा। हमारे नेताओं को, और मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, हमारे नेताओं को गुजरात की जनता के बीच में, घर में जाना पड़ेगा, उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। हम सुनने आए हैं, भाषण देने नहीं आए हैं, नारे लगाने नहीं आए हैं, हम सुनने आए हैं। जो आपके दिल में है आप हमें बताइए, यह पहले करना पड़ेगा। और दूसरा है, जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है, और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। સાથીઓ, રાહુલ ગાંધીએ સંસદની અંદર મોટા ઉપાડે મોદી અને શાહની સામે ઊભા થઈને ચેલેન્જ આપતા તો આપી દીધી કે આ વખતે અમે તમને ગુજરાતમાં હરાવવા જઈ રહ્યા છીએ। પણ રાહુલ ગાંધીએ સારી રીતે જાણતા હતા કે 30 વર્ષથી આપણે સત્તામાં નથી, આમ આ મોદી અને શાહને હરાવવા બહુ મુશ્કેલ છે। અને આ વખતે જે ચૂંટણી પરિણામો આવ્યા છે સ્થાનિક સ્વરાજ્યના ગુજરાતના, એટલે એની અંદર તો કોંગ્રેસ સાવ તળિયા ઝાટક થઈ ગઈ। રાહુલ ગાંધીને લાગ્યું હશે ચાલુ મેં ચેલેન્જ તો આપી દીધી, પણ આ ગુજરાત કોંગ્રેસના નબળા નેતાઓ મારી આબરૂ કાઢશે, મારી આબરૂ બે કોડીની કરી નાખશે। હાલો હાલો ભાઈ ગુજરાત, હાલો બિસ્તરા પોટલા પેક કરો, ધામા નાખીએ ગુજરાતમાં, શું ડખો છે જાણીએ। એટલે રાહુલ ગાંધી ડખો જાણવા માટે આવ્યા હતા, ભાઈ લોચો ક્યાં છે, ક્યાં લોચા લાપસી છે, આપણે કેમ હારી રહ્યા છીએ, કેમ આપણું ગુજરાતમાં તળિયા ઝાટક થઈ રહ્યું છે, કેમ 30 વર્ષથી આપણે ક્યાંય નામું નિશાન નથી સત્તામાં। રાહુલ ગાંધીએ આ જાણવા માટે ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રમુખથી લઈને પૂર્વ પ્રમુખ, નેતા, વિપક્ષના નેતાથી લઈને પૂર્વ વિપક્ષના નેતા, ત્યાં સુધી કે તાલુકા અને જિલ્લા પ્રમુખ અને કાર્યકર્તાઓને બધાને ભેગા કર્યા। ભાઈ હવે બોલો, શું તકલીફ છે, કેમ આપણે હારીએ છીએ, કેમ આપણે સત્તામાં નથી, કેમ આપણે પાછળ રહી ગયા। ત્યારે બધા નેતાઓએ પોતાની ફરિયાદનો ટોપલો રાહુલ ગાંધી સામે ખોલી દીધો। રાહુલ ગાંધીએ મન ખોલીને બધાની ફરિયાદો સાંભળી અને રાહુલ ગાંધી એ સાંભળ્યા પછી એટલા નિરાશ અને એટલા ઉદાસ થઈ ગયા કે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવા પણ નહોતા રહ્યા, સીધા ભાષણ આપવા આજે આપણને ભાષણ આપતા જોવા મળ્યા। અને એ ભાષણ જે આપ્યું છે રાહુલ ગાંધીએ, જે કોંગ્રેસના જે નબળા નેતાઓનો જે ઉધડો લીધો છે, કોંગ્રેસની ખામીઓ વિશે જે ચર્ચા કરી છે, એટલે સ્ટેજ ઉપર બેઠેલા અને સ્ટેજ નીચે બેઠેલા જે નેતાઓ વિશે રાહુલ ગાંધીએ આડકતરી રીતે કહ્યું હતું, એ નેતાઓના તમે જે મોઢા જોવો ને ભાઈ, આમ લબડી ગયેલા મોઢા જોઈને તમને એવું લાગે કે આ નેતાઓની અંદર જો થોડી શરમ હશે ને તો ઘરે જશે, તાત્કાલિક ઢાંકણીમાં પાણી લઈને ડૂબી મરશે। પણ અફસોસ આ નેતાઓ એવું કરવાના નથી, કારણ કે જાડી ચામડીના નેતાઓ છે। રાહુલ ગાંધી એવું તો શું કીધું હશે? રાહુલ ગાંધીએ એવું કીધું કે અમારી કોંગ્રેસના અડધા, ગુજરાત કોંગ્રેસના અડધા નેતાઓ તો ભાજપ સાથે ભળેલા છે, ભાજપ સાથે મળીને કામ કરે છે। વિચારો, આ રાહુલ ગાંધીનું આ સ્ટેટમેન્ટ છે। અને જાહેરમાં એવું નથી કે બિચારા બંધ બારણે કહી દીધું, જાહેરમાં કીધું ભાઈ અમારી કોંગ્રેસમાં આવા લોકો ભર્યા છે, અમે આવા લોકોને દૂર કરી નાખશું। હવે જે 30, 40, 50 લોકો અમારા આવા કાઢવા પડે ને તમને કંઈ ખાંડો પડવાની નથી, કાઢી નાખીશું, આવું રાહુલ ગાંધીએ કીધું। સાથે સાથે રાહુલ ગાંધીએ એવું પણ કીધું કે 30 વર્ષથી આપણે આપણી ભૂલ સ્વીકારવી પડશે કે અમે તમારી આશા ઈરાદાઓ ઉપર પાણી ફેરવી નાખ્યું। આપણે બધા વચ્ચે જવું પડશે ને આ સ્વીકારવું પડશે, તો જ આ જનતા આપણી પર ભરોસો કરશે અને સ્વીકારવામાં, ભૂલ સ્વીકારવામાં કંઈ વાંધો નથી। રાહુલ ગાંધીએ ત્યાં સુધી કીધું કે ભાઈ હવે નારાબાજી, ભાષણબાજી ભાઈ એવું બધું કરવાનું કામ નહીં ચાલે।
તમારે લોકોના ઘર સુધી જવું પડશે. નહીં ચાલે નારા અને ભાષણબાજી. અને આમે પણ કોંગ્રેસ નારા અને ભાષણબાજી સિવાય કંઈ કરતી નથી. તમે જુઓ કે જ્યારે કોઈ મુદ્દાને લઈને ઉપાડવાનો, મોદી તેરી તાનાશાહી નહીં ચલેગી નહીં ચલેગી, બસ ખાલી આટલું જ કરે. ભાઈ મારા બેટા ઘરે જાય અને ગોદડા ઓઢીને હુઈ જાય. આટલો જ એમનો વિરોધ, બીજો કંઈ જ વિરોધ નહીં. એ જાણવાની કોશિશ સુદ્ધા નથી કરી કે લોકો કેવી પરિસ્થિતિમાં જીવી રહ્યા છે. લોકોના ઘર સુધી જાય તો ને એસી વાળી ઓફિસમાંથી બહાર નીકળવું જ નથી ને, પદ અને હોદ્દા લઈને મારા બેટાઓને જલસા કરવા છે. અમે કોંગ્રેસના ફલાણા હોદ્દેદાર છીએ. આવું ના હોય યાર. તમે વિપક્ષ તરીકે પણ નિષ્ફળ નીવડ્યા છો. સત્તામાં બેસવાના તો કાબિલ છો જ નહીં. એટલે જ રાહુલ ગાંધીએ તમારે રાહુલ ગાંધીને અહીંયા આવવું પડે. લે ભાઈ તમારા શું તકલીફ છે, તમારે કેવું જોઈએ તકલીફ. પણ રાહુલ ગાંધી તમને સાંભળવા માટે આવે ને જે રાહુલ ગાંધી જે બોલ્યા છે એ તમે આ વીડિયોની અંદર સાંભળી શકો છો. तकरीबन 30 साल हो गए हम यहाँ सरकार में नहीं हैं, और जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं. जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी. और सचमुच में हमें गुजरात की जनता से ये मांगना भी नहीं चाहिए कि आप हमें सरकार दीजिए जब तक हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी. जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे. गुजरात फंसा हुआ है, गुजरात को रास्ता नहीं दिख रहा है. गुजरात रास्ता देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है. और कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं और मैं स्टेट से कह रहा हूं कि गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसको रास्ता नहीं दिखा पा रही है. और मैं शर्मा कर नहीं बोल रहा हूं, मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं. और हमें ये सबसे पहले, अगर हम गुजरात की जनता को रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें ये साफ कहना पड़ेगा कि आज तक जो पिछले 15, 20, 30 साल जो गुजरात की एक्सपेक्टेशन हमारे से थी, मुझसे थी, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से थी, हमारे इंचार्ज से थी, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे. पहले ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं बोलेंगे तो हमारा गुजरात की जनता से कभी रिश्ता नहीं बनेगा. और मैं यहां गुजरात के युवाओं से रिश्ता बनाने आया हूं. अब सवाल उठता है क्यों, और उसका जवाब है कि गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें दो तरीके के लोग हैं. डिवीजन है. अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर दो टाइप के हैं. एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है. और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है, और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं. जब तक हमने इन दो को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है.
गुजरात की जनता, गुजरात के व्यापारी, गुजरात के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, गुजरात के किसान, गुजरात के मजदूर, गुजरात के स्टूडेंट्स ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी ये दो जो ग्रुप्स हैं इनको छानने का है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बर शेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। एक बार मेरी मीटिंग हो रही थी, वहां पे शायद मध्य प्रदेश का डेलीगेशन था। एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ, कहता है राहुल जी आप एक काम कर दीजिए। मैंने कहा क्या? कहता है दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। अब गुजरात की जनता देख रही है, गुजरात की जनता देख रही है, कह रही है भैया कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें दो काम करने हैं। पहला काम, ये जो दो ग्रुप हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है। और जैसे ही, मतलब अगर हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, सीनियर लीडर हो, तो यहां पे कांग्रेस होनी चाहिए, दिल में कांग्रेस होनी चाहिए। जीतने हारने की बात छोड़ दो, अभी जीतने हारने की बात छोड़ दो। बस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। पहला काम यह है। और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। और हमें गुजरात को अब चुनाव के बारे में बात नहीं करनी है। ये हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। और अब हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें दी, आपके बिना कांग्रेस की विचारधारा होती नहीं। तो जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वही हमने गुजरात में करना है। मैंने कहा कि गुजरात फंसा हुआ है। गुजरात की बैकबोन क्या है? गुजरात की बैकबोन छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। वो खत्म हो गए हैं। आप डायमंड इंडस्ट्री को देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखिए, सिरेमिक्स इंडस्ट्री को देखिए, गुजरात के किसानों को देखिए। ये चिल्लाकर कह रहे हैं कि हमें एक नया विजन चाहिए। ये जो विजन 20-25 साल से चल रहा है, ये फेल हो गया है, हमें एक नया विजन दीजिए। और कांग्रेस पार्टी बहुत आसानी से ये विजन दे सकती है, मगर उस दिन तक नहीं दे पाएगी जब तक ये दो तरीके के जो लोग हैं इनको छाना नहीं जाएगा। तो ये मैं आपसे कहने आया था कि जनता से जुड़ने की जरूरत है। हमने भारत जोड़ो यात्रा में दिखाया कि कांग्रेस पार्टी कर सकती है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने दिखाया कि कांग्रेस पार्टी जनता के साथ आसानी से जुड़ सकती है। और देश की पॉलिटिक्स बदल गई। हमारे नेताओं को, और मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ रहा हूं,
हमारे नेताओं को गुजरात की जनता के बीच में, घर में जाना पड़ेगा, उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। आप हमसे चाहते क्या हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजनेस के लिए, भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। हम सुनने आए हैं, भाषण देने नहीं आए हैं, नारे लगाने नहीं आए हैं, हम सुनने आए हैं। जो आपके दिल में है आप हमें बताइए, यह पहले करना पड़ेगा। और यह आसानी से, मैं आपको कह रहा हूं, आसानी से किया जा सकता है। आप एक बात याद रखिए, मैं अभी कह रहा था गाड़ी में, विपक्ष के पास गुजरात में 40% वोट है। छोटा विपक्ष नहीं है, यह नहीं है कि 5% वोट है। आप दोनों आइए, आगे सामने आइए, आप दोनों आइए, यहां खड़े होइए। अगर गुजरात में आप कहीं भी ऐसे दो लोगों को खड़ा कर दोगे, एक बीजेपी का है, एक कांग्रेस का है, आप किसी भी दो लोगों को चुनो, कहीं भी बैठ जाइए, कहीं भी गुजरात के किसी भी कोने में 40% हमारे हैं, मतलब दो में से एक हमारा, एक उनका। मगर हमारी माइंड में है कि भैया कांग्रेस पार्टी के पास दम नहीं है। अगर हमारा वोट 5% बढ़ जाए, बात वहीं खत्म हो जाएगी। तेलंगाना में 22% वोट बढ़ाया हमने, 22% वोट बढ़ाया हमने तेलंगाना में। यहां 5% की जरूरत है, मगर छाने बिना 5% नहीं मिल सकता। तो यह मैं आपसे कहने आया था, जहां भी आप मुझे ले जाना चाहते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में ले जाना चाहते हो, जहां भी, सूरत हो, अहमदाबाद हो, खेड़ा हो, कच्छ हो, जहां भी ले जाना चाहते हो, मुझे बताओ। मैं गुजरात को समझना चाहता हूं, मैं गुजरात की जनता से रिश्ता बनाना चाहता हूं। आप सब हमारे सिपाही हो। मैं जब कहता हूं कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर, ऐसे नहीं कहता हूं, बट हमारा जो बब्बर शेर है वो थोड़ी कॉन्फिडेंस खो चुका नहीं है। नहीं, देखो, कॉन्फिडेंस कोई खोता नहीं है, कॉन्फिडेंस अंदर होती है, उसको निकालना पड़ता है। मेरा काम आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको निकालने का है, वो खोई नहीं है, वो है अंदर। गुजरात का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके दिल के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। शर्त यह है कि कॉन्फिडेंस बाहर आई है या नहीं। तो ये मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है, और मैं इस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रॉब्लम आती है गुजरात में, एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं थोड़ा अपना वेट कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं जब भी मैं यहां आता हूं। पता नहीं आप लोग क्या करते हो, किसी रेस्टोरेंट पे ले जाते हो, कहीं मतलब स्नैक्स डाल देते हो, कहीं मेरा 1 किलो ऐसे ही बढ़ जाता है वेट। तो आप सबको, गुजरात की जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद।